All right, the other big national story, we're tracking the rift in the Yadav Parivar. SP Chief Mulayam Singh Yadav is addressing a press conference. Let's cross live. एक लोग लाइट इधर कह रहे हैं कि साइड से लाइट दे लो, चाहे साइड से लाइट लगा दो और आ जाओ और आ जाओ इधर आ जाइए। बाद अब ये फ्लाइट से दे दी लाइट। फिल्टर लगाओ, फिल्टर लाइट पे सीधा हो गया तो हाँ हाँ लाइट बंद कर दो, लाइट दे दे लाइट। बाबूजी आ रहे हैं 5 मिनट बाद, बाबूजी कह रहे 5 मिनट बाद। श्याम अरे यार मैं मिला कि नहीं मिला? ऑडियो माइक उठा के बाला एक बार माइक में बोल दो। The live visuals that we're getting you from Lucknow, SP Chief Mulayam Singh Yadav expected to address the press anytime now. This after UP Chief Minister and Mulayam's son Akhilesh announced his own list of candidates for the upcoming assembly polls. Akhilesh's move comes 2 days after Mulayam Singh announced a list of candidates where Akhilesh's loyalists were sidelined and priority was given to Shivpal supporters. We'll continue. Chief Mulayam Singh Yadav is addressing the press. Let's cross live. चलो आपका दिखाई तो पूरे देश में जा रहा है। एक काम तो हो गया कि आपका पूरे देश में लाइट हो रही से जा रहा है। पूरे देश में लाइट चला जाएगा। 12 मिनट पूरे देश हर चैनल पे लाइव है। अरे कागज चाहिए था तो कहाँ जब आएगा तो खाने क्या करना। कागज ही लगा रहे हैं, ये क्यों कर रहे भाई? वहाँ से चले जाओ। यहाँ मिल रहा है, यहाँ सब बढ़ता जाएगी। तार नहीं आने देंगे, लाइव वाला तार होना चाहिए। ठीक है नीचे हो जाए कागज मिला है जिसमें क्या है
These are live pictures that we're getting from Lucknow. SP Supremo Mulayam Singh Yadav expected to address the press any time now. He's seen here sitting with his brother Shivpal Yadav. There's an ongoing battle in the Yadav clan. After Mulayam Singh Yadav declared the first list of candidates for the upcoming UP polls on Wednesday, Akhilesh Yadav has announced a separate list today. We're being told that Mulayam Singh Yadav has also now issued a notice against his son and Chief Minister Akhilesh Yadav. The rift in the Yadav Parivar widening by the minute, with Ram Gopal Yadav saying that it looks like the party is heading towards a split. The countdown for the UP elections has begun, and differences between the father and son coming out to the fore. In the list that was announced by Mulayam Singh Yadav on Wednesday, preference was given to Shivpal loyalists. In fact, the 8 people who had been sacked by Chief Minister Akhilesh Yadav, their names were also included in the list. They were given tickets. They were seen as loyalists of Shivpal Yadav. We're also being told that on that list, most supporters of Akhilesh Yadav were ignored. Akhilesh now hitting back by declaring his own list for 235 seats. Mulayam Singh Yadav expected to address the press anytime now. Preparations underway in Lucknow there. We're being told that an emergency meeting of SP leaders has been called by Ram Gopal Yadav on the 1st of January. Interesting to know that the meeting hasn't been called at the SP headquarters, but inside a university. The divide very clear in the Samajwadi Party. It looks like the party is heading towards a split. Mulayam is now addressing the press. Let's cross live. ऐसा है ये सभी पत्रकार मित्रों, आपको बहुत जल्दी में बुलाया है, करीब करीब हो गया, लेकिन महत्वपूर्ण एक हमारा निर्णय है, समाजवादी पार्टी का निर्णय है। आज दिनांक 3 दिसंबर 2016 को हमने लिखा है श्री रामपाल यादव, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी, उनको मैंने पत्र लिखा है। आज दिनांक का है श्री रामपाल यादव, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी, उनको आंतरिक एक सूचना समाजवादी पार्टी के सदस्यों को जारी की गई और इस सूचना द्वारा आपने पार्टी का आपातकालीन राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन 1 जनवरी 2017 को प्रातः 11 बजे डॉक्टर राम मनोहर वैदिक विश्वविद्यालय आसाना लखनऊ में बनाना का प्रातः 11 बजे डॉक्टर राम मनोहर और अभी जारी किया। आप भली भांत से अवगत हैं, ऐसा कोई सम्मेलन राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा अन्य किसी को बुलाने का अधिकार नहीं है। समझ रहे आप? राष्ट्रीय अध्यक्ष को है ये अधिकार, और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है वो आप जानो। विगत कुछ दिनों
से आपने अनुशासनहीनता के अनेक कृत्य किए हैं और इस सूचना को जारी करके आपने न सिर्फ घोर अनुशासनहीनता की है बल्कि पार्टी को भारी आघात पहुंचाने और पार्टी की कमजोर करने का कार्य किया है। इन स्थितियों में आपको पार्टी की समस्त पदों पर सदस्यता से राजभार करते हुए तत्काल प्रभाव से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया जाता है। क्योंकि ऐसा है कि अभी तो हमारी बात कि ये लगातार ऐसा क्यों करे। अभी हमने 6 महीना पहले अनुशासनहीनता होने की बहुत जबरदस्त और सीधा हम पर हमला किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष हम इनके घर गए मिलने, बातचीत करने थे और बातचीत करते हुए सब बातचीत हो चुकी। उन्होंने जो बातें कही वो मैंने सुनी और उनकी बातों को मैंने गंभीरता से सुना और हम निकले जैसे ही वैसे प्रेस जारी कर दिया। जब बातचीत हो चुकी तो जारी कर दिया, तब इनको मैंने 6 साल के लिए निकाला। फिर इन्होंने सार्वजनिक रूप से गलती स्वीकार की और फिर हमारे घर पे आए। वहाँ इन्होंने सब गलती स्वीकार करी, हमने उनको माफ़ कर दिया और पुनः पार्टी में दे करके उन सभी पदों पर नियुक्त कर दिया। अब आज उन्होंने क्या किया है, क्या एक दिन में विशेष अधिवेशन, राष्ट्रीय विशेष अधिवेशन बनाया जा सकता है? क्या आपको अधिकार है विशेष अधिवेशन बनाने का? विशेष अधिवेशन हम भी बुलाते तो राष्ट्रीय कार्यकारी की बैठक करते या पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक करते, 2 में या तो पार्लियामेंट ऐसे चलती है पार्टी, इनकी पार्टी चलेगी, न तो पार्लियामेंट और नहीं राष्ट्रीय कार्यकारी बैठक बुलाई। हमें पूछ लेते, अनुमति हम देते हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारी बैठक बुला दो। हमें पूछ लेते कि हम पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक बनाना चाहते हैं, हम अनुमति देते तो बुलाइए। और हम तो पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक वैसे ही बुलाने वाले थे, अभी आपके सामने खबर आ जाती, लेकिन तब तक किया गया। इसलिए हम प्रोफेसर रामपाल को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करते हैं कि इन्होंने पार्टी को बहुत कमजोर किया है और चुनाव के वक्त पर ऐसी समस्या जानबूझ से पैदा की है। और मैं जो बताऊंगा दूसरी बात को, और ये जो मुख्यमंत्री जी हैं वो नहीं समझ रहे। मुख्यमंत्री जी का भविष्य ही खत्म कर रहा है ये प्रोफेसर रामपाल। जो मुख्यमंत्री हैं अब उनको भी अपना सादा करके कामों में कर रहे। मुख्यमंत्री तो निर्विवाद होता है, क्या हम नहीं रहे मुख्यमंत्री? ऐसे मौके आए कभी नहीं आए। अयोध्या कांड हुआ तो हमें मेरी इच्छा के विरुद्ध भी देश की एकता के लिए हमारे सुरक्षा बलों ने जो कार्रवाई की उसको नैतिकता के नाते मैंने पार्टी समाजवादी पार्टी की सरकार भंग की और जनता भी चले गए। हार गए, ठीक है, कोई बात नहीं। और 4 में फिर बन गए। 11 महीना बाद चुनाव हुआ तो नैतिकता के नाते मैंने अपनी सरकार भंग की। हम चाहते नहीं थे, अगर हम मस्जिद नहीं बताते तो एकता देश की टूट जाती, एक विशेष वर्ग का विश्वास हो जाता कि हमारे पूजा स्थान नहीं रहेंगे तो फिर हम कैसे सच्चे रहेंगे। इसे वो कार्रवाई की थी, लेकिन इनका उसमें कहीं योगदान नहीं, कहीं सहयोग नहीं, कभी नहीं रहा। बने बैठे हैं महामंत्री
आदेश करते हम मनवाते भी। तो अब आज उन्होंने फिर ऐसा काम किया। ऐसा कोई आप पत्रकार भाई हैं, फिर भी दिमाग से सोचेंगे कि एक दिन में विशेष अधिवेशन, आज है 30 तारीख, तो कल कैसे चल पड़ेंगे सब। और एक दिन में विशेष अधिवेशन बनाया जाए, राष्ट्रीय अधिवेशन, उसके लिए कम से कम 15 दिन समय दिया जाता है, और बहुत ही हो तो 10 दिन तो दिया जाता है। और फिर हमें नहीं, हमारी अनुमति नहीं, हमें पूछा भी नहीं, हमें बताया भी नहीं। हमें तो आप लोगों के माध्यम से पता चला, हमें तो प्रेस से पता चला कि इन्होंने विशेष अधिवेशन बुलाया और पत्र बुलाया। तो ये विशेष अधिवेशन का वैधानिक नहीं है। ऐसे क्या सोचा कि एक दिन में सब आ जाएंगे, और इसमें प्रतिनिधि कौन कौन हैं, वो क्या सूची जारी की उन्होंने, क्या सिर्फ सूची मिली, क्या इनको सूची मिली। प्रतिनिधि तो ये भी है, MLC हैं, ये भी MLA हैं, तो इनको भी पता नहीं। तो ये पूरा का पूरा अधिवेशन असंवैधानिक है। इसे प्रदेश के पूरे कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, मिनिस्टरों से, विधायकों से हमारी अपील है कि इसमें शामिल न हो। वो पूरी तरह से अनुशासनहीनता है। हम नहीं चाहते किसी के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाए या कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं। बहुत आपने अधिवेशन देखे, एक 24 घंटा के अंदर विशेष अधिवेशन हो जाएगा देश का। विशेष बम्बई के आ जाएंगे क्या पश्चिम बंगाल के आ जाएंगे क्या राजस्थान के आ जाएंगे क्या? आप सोचिए, इससे बड़ी अनुशासनहीनता कोई नहीं हो सकती है जो प्रोफेसर रावपाल ने की है। इसे अभी तो मैंने 6 साल के लिए निकाला है। सोचेंगे कि ये कड़ी सजा और क्या दी जाए पार्टी तरफ से, और कड़ी सजा दी जाए। इसे मैंने आपको बोला जहाँ तक अब इनको लपेटा है अखिलेश को, अखिलेश का भविष्य खत्म करना ही रावपाल। क्या आप नहीं समझ रहे? इससे अखिलेश का भविष्य खत्म कर रहा है ये रावपाल। भैया ये मुख्यमंत्री समझ नहीं पा रहा है। कौन बना रहा था मुख्यमंत्री ने? कोई भी बता दे बना रहा हो, कोई भी, हमने खुद बना दिया। तो इसे अभी बना दो, फिर कोई मौका मिलेगा नहीं। हम बना सकते हैं, बना दिया। आप बताओ, इतिहास में किसी ने अपने लड़कियों को ऐसा किया? हिंदुस्तान में बता दो। चाहे अंग्रेजी राज हो, चाहे मोहनकाल हो, चाहे कोई हो, चाहे अभी कांग्रेस राज हो, चाहे कोई पार्टी रही, कभी किसी ने स्वयं मेरा स्वास्थ्य खराब है क्या दौरा में करता था किसी से? इन लोगों से ज़्यादा दौरा करता, इन लोगों से ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, इन लोगों से ज़्यादा लोगों से मिलते हैं। तो अब हमें ने ये सोचा कि बना दे। अब इसका भविष्य भी खत्म कर दिया रावपाल ने। हम आज बता रहे हैं अखिलेश का भविष्य खत्म कर दिया। अब तो ये विवादित कर दिया इसको, और ये समझ ही नहीं पा रहा। ये हमसे भी राय नहीं दे रहा। अब पूछे तक विशेष अधिवेशन बुलाया जा रहा है, क्या करना चाहिए? ये सबको सूचना सरकारी दुरुपयोग कर रहा है सरकार का, और सबको सूचना दे रहा है आ जाइए रातों रात, साधन दे रहे कि आ जाइए। ऐसे कई पार्टी चलती। इसलिए मेरे सामने अब कोई भी ऐसा नहीं बचा था कि हम इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। इसे मैंने रावपाल को 6 साल के लिए निष्कासित किया है, और दूसरा
वाला है नीचे अभी करने की टाइप हो रहा है, टाइप हो रहा है। हाँ कह दो। हाँ आपको लिख के दिया जाएगा जी आपको आ पूरी बात सुनिए। पता चला कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी समर्थन इसमें है, इसे उनको भी 6 साल के लिए नकारा जाता है। दोनों मैं पार्टी को बचाना चाहते हैं। मेरा लक्ष्य किसी को सजा देना नहीं है। बड़ी मेहनत के साथ हमारे पुराने बहुत साथी जानते होंगे, जमीन पे लेट के भूखे रह करके राजा घर चल साइकिल पे चल ट्रैक्टर में चल के, और हमने 11 महीना में पार्टी बना दी और पार्टी बना करके 4 बार सरकार बनी। इतनी मेहनत ये वाली फिर से बता दीजिए। बात जो आपने कही है वो दोबारा रिपीट करिए। हम ये कह रहे हैं कि प्रोफेसर रावपाल ने जो किया है पूरा असंवैधानिक है। अधिवेशन बुलाया जाता है तो पहले प्रचार किया जाता है कन्वेंशन है। अब आप चुपचाप दस्तखत करा रहे, खारिज करा लिए होंगे, क्योंकि अधिवेशन बनाने के लिए 40% प्रतिनिधियों के दस्तखत होना चाहिए। तो आज जारी कर रहे अभी, तो आज रात में दस्तखत हो जाएंगे पूरे देश के। आप बताओ, क्या बंगाल के, केरल के, राजस्थान के कहीं पार्टी पे सब जगह है? मुख्यमंत्री वाली जो आपने बात कही है, अब इसने क्या किया, अपना तो जो कर रहा है वो अपना जागरूक है। अब ये अखिलेश का भी भविष्य खत्म कर रहे हैं, निश्चित बता रहा हूँ। अब तो अखिलेश का ही भविष्य खत्म कर दिया इसने, तो अखिलेश समझ ही नहीं पा रहा कि इसका भविष्य खत्म होगा कि नहीं होगा। आप ही बताइए, आपने क्या फैसला क्या मुख्यमंत्री जी के खिलाफ भी कोई एक्शन लिया है नेताजी? मुख्यमंत्री शामिल है। जैसे रामगोपाल जी पर आपने एक्शन लिया है, क्या मुख्यमंत्री जी पर भी कोई एक्शन लिया है आपने? दोनों को 6 साल के लिए दोनों नेताजी सवाल ये है, उन्होंने नेताजी ये जो कुछ सब कुछ हुआ है उसमें पिछले 1 हफ्ते से अब तो देखिए, अब तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम पूरी समाजवादी पार्टी को बचाने के लिए करेंगे। हमारे लिए समाजवादी पार्टी प्राथमिकता है, हमारे लिए पद नहीं है, न हमें सम्मान का है। अब हमें पार्टी बचानी है। इसे प्रदेश के पूरे और देश के कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि कोई भी इसे असंवैधानिक सम्मेलन में शामिल न हो और समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाएं और समाजवादी पार्टी को बचाएं, वरना पार्टी टूट जाएगी। हम पार्टी को नहीं टूटे देंगे। इसे मेरी देश के सारे कार्यकर्ताओं से, नेताओं से अपील है कि इस असंवैधानिक अधिवेशन में नहीं आना चाहिए। 24 घंटा में अधिवेशन होता है और राष्ट्रीय होता है। आप सभी पत्रकार देखते हैं, 1 महीना पहले करते कर सको, कम से कम 1 महीना पहले तारीख होती है, राष्ट्रीय कार्यकारी की बैठक होती है, पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक होती है, तब मिलकर तारीख तय करते हैं, सहमति सबकी ली जाती है, तब राष्ट्रीय अधिवेशन होता है। अब ये राष्ट्रीय अधिवेशन 6 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा में हो जाएगा। ये मुख्यमंत्री बने रहेंगे? सरकार है, अधिकारी लगा दे, दस्तखत करो। नेताजी आपने प्रेस को निकाल दिया है, तो क्या मुख्यमंत्री के पद में भी कोई बदलाव करेगी पार्टी?
मुख्यमंत्री के पद पे भी कोई बदलाव करेगी पार्टी अखिलेश को निकाले जाने के बाद? हमने 6 साल के लिए दोनों को 6 साल के निकाला है। मुख्यमंत्री कौन रहेगा नेताजी? वो हम तय करेंगे, हम अकेले नहीं करेंगे। विधायकों की बैठक बुला के अखिलेश जी को हटाने की बात करेंगे। आपका साथियों से बातचीत करेंगे, जरूरत पड़ेगी राष्ट्रीय कार्यकारी बना लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो पार्लियामेंट रूल बना लेंगे। हम तो बिना पार्टी के नेताओं की राय के बिना कैसे कोई फैसला नहीं। मुलायम सिंह जी, अभी आपने कहा कि आपने अखिलेश आपने अभी कहा कि आपने अखिलेश को सीएम बनाया, अब वो आपके बेटे भी हैं, उनको पार्टी से आपने आज निकाल दिया 6 साल के लिए, तकलीफ हुई? कोई भी हो, पार्टी दूसरी अगर काम करेगा मुख्यमंत्री तो पार्टी हमारी प्राथमिकता है, और हमारी पार्टी वजह से तो ये बना ही मुख्यमंत्री, तो ये मुख्यमंत्री ही अपना दावे से खराब कर रहा, तो हम क्या करें? लेकिन नेताजी ऐसा कौन सा फॉर्मूला था मुख्यमंत्री जी की तरफ से? सवाल यही सब पूरा देश यही जानना चाहता है। प्रोफेसर रामपाल पूरी तरह से अखिलेश का भविष्य खराब कर रहा है। नहीं, ठीक है, पूरा देश यही जानना चाहता है। सहमत हो कि नहीं? पूरा देश यही जानना चाहता है। सवाल ये था कि आप अब 4 पूछे तो कैसे बता, एक पूछो। सवाल ये है कि आप अखिलेश जी के पिता भी हैं, आपका पार्टी हमारी प्राथमिकता है, पार्टी बचाना प्राथमिकता है। उसी जी का जो सवाल था वो है कि एज ए पिता होने के नाते आपको कोई तकलीफ भी महसूस हुई थी? आपके बेटे ने ऐसा किया के लिए दोनों को 6 साल से निकाल दिया। बस लीजिए, अब रह क्या पूछे? पार्टी बचाने के लिए प्रोफेसर रामपाल और अखिलेश दोनों को 6 साल के लिए पार्टी से निकालता हूँ। चुनाव बनाएंगे, पूरा अधिकार हमको है, अपना पार्लियामेंट रूल बना लेंगे, साथियों से पूछेंगे। और अभी आपका अब आप ये बताइए, आप बताओ अनुशासनहीनता कितनी है? जब उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं तो रात में मुख्यमंत्री उम्मीदवारों को घोषित करना, बस ये दिखा दो, ये चिट्ठी दिखा नेताजी एक सवाल है, नेताजी थोड़ा सा नीचे एक सवाल नेताजी इधर, नेताजी एक सवाल है। नीचे वाली चिट्ठी भी, नीचे वाली चिट्ठी, नीचे चेहरा, नीचे वाली भी चिट्ठी, नेताजी नीचे वाली भी चिट्ठी। मुख्यमंत्री के तौर पर विधायकों का समर्थन मिलता है तो क्या होगा? शिवपाल यादव को नया मुख्यमंत्री के रूप में क्या होगा वो अपने तय करेंगे। नेताजी आपको ये चिंता नहीं है? क्या तय होगा हम अकेले नहीं करेंगे, हम नेताजी तमाम प्रदेश के नेता हैं, पार्लियामेंट बोर्ड है, राष्ट्रीय कार्यकारी है, उसमें फैसला करेंगे, इनकी तरह करेंगे। नेताजी आपको इस बात की चिंता नहीं है कि आपने नेताजी आपको इस बात की चिंता नहीं है कि आपने इतनी मेहनत करके सरकार बनाई थी, बहुमत की सरकार बनी थी और खुद अपने हाथ में मेहनत करके पार्टी बनाई, इतनी मेहनत की मैंने पार्टी बनाने में, तो कहाँ थे ये कहाँ थे ये लोग? मैंने पार्टी बनाई 92 में पार्टी बनाई थी, मुख्यमंत्री से इस्तीफा देके वो अलग होकर के अकेले, मैं पहले दिन अकेला निकला और पूरे प्रदेश का दौरा करके और पार्टी बना के 4 में फिर सरकार बनाई। मेहनत मांगी, इनका क्या योगदान है? लाभ उठाएं ये, मेहनत करें हम, लड़ें हम, जेलों में जाए हम, इमरजेंसी में जेल गए थे क्या ये? चलो ये तो बच्चे थे, क्या प्रदेश साहब गए थे जेल में?
कैसे ये पूछ रहे हैं नेताजी की कैसे हम लोगों ने कितनी सजा काटी। देवरिया में गिरफ्तार करके बरात में डाल दिया, फतेहगढ़ की जेल में 4 बार डाल दिया, इटावा की जेल में डाल दिया। आप सोचो तो पुराने लोग जानते हैं सब कितना तकलीफ झेली, तब मैंने ये पार्टी खड़ी की। और ये पार्टी खत्म करना चाहते रावपाल हो गए और इसका भविष्य खत्म कर देंगे। अखिलेश का रावपाल पार्टी तो बर्बाद कर ही रहा, लेकिन अखिलेश का भविष्य खत्म कर रहा। मैं बता रहा हूँ, तो सोचिए हमें इस बात का दुख है नहीं। बड़े मन से मुख्यमंत्री बनाया था। नेताजी माफी मांग लेंगे तो वापस ले लेंगे आप? कौन? अखिलेश जी। अखिलेश जी अखिलेश माफी मांगे का लड़का है, वो क्या माफी मांगेगा? वो तो लड़का पिता है आप, हो सकता है मांगने। अब पिता मानता होगा तो देखा जाएगा। नेताजी जैसे आपने बताया कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव जिम्मेदार हैं, ऐसे और भी कई लोग हैं जिन्होंने चाटुकारिता करके अभी तो 2 जिम्मेदार हैं, प्रोफेसर रामपाल और अखिलेश साहब कह देते प्रोफेसर रामपाल साहब कि ये बातें न करिए, चुनाव की तैयारी करिए। जब उम्मीदवार तय हो गए हैं, उम्मीदवार तय हो गए, उम्मीदवार घोषणा कर सुनिए, अब हमने उम्मीदवार घोषणा कर चुके। कभी सुन ही लेता है आप खुद ही नहीं बोलने देते। फिर रात में इसने 200 इसने कर दिए, कितने 235। ये देखिए, ये खुद भविष्य अपने जो मैंने उम्मीदवार घोषित किए, अगर वो जीत के आगे बहुमत होगा तो मुख्यमंत्री कौन बने? और उसने खुद 200 और कर दिए। ये विवाद में क्यों पड़ गया? तो हम क्या करें? अखिलेश अपना भविष्य खुद खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। रामपाल तो करेंगे ही। नेताजी ये नेताजी रामगोपाल हो गई बात। एक बात उससे पूछा, आपने कह दिया रामगोपाल जी में सवाल है कि रामगोपाल या अखिलेश जी इस तरह की एंटी पार्टी दोनों बर्बाद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? किसी के इशारे में सरकार गिर जाएगी नेताजी, इसको चिंता नहीं है, बदले जाएंगे, सरकार गिर जाएगी। ऐसा कौन सा फॉर्मूला था जिसमें सहमति नहीं बन पा रही थी? वो ऐसा क्यों? नेताजी रामगोपाल यादव ने सुपारी ली है। नेताजी कोई आपने बैठक बुलाई है क्या? विधायकों की कोई बैठक बुलाई है आपने? नेताजी अगर सख्त डिसीजन लेना पड़ा तो क्या आप उसके लिए अभी आगे भी तैयार हैं? नहीं अपनी सुनो यार।